Hello everyone, I am Ruchi. Welcome to my channel Rakan Classes. So today I am going to teach you surface areas and volumes for class 9th CBSE. In this video I will discuss about surface area of cube, cuboid and right circular cylinder. In this chapter, we shall dealing with the surface areas and volumes of cube, cuboid, right circular cylinders, right circular cones and spheres. Surface areas and volumes of a solid. A physical body occupying some space is called a solid. It has three dimensions, namely length, breadth and height. For example, brick, book, ice cream, cone. These are some examples of solids. The faces which bounds a solid are called its surfaces. Surfaces may be plane or curved. For example, in book, surface areas are plane, but in ball surface area is curved. The amount of space occupied by the bounded surfaces of a solid is called the volume of the solid. Volume is also called as capacity. Now first one is cuboid. A solid bounded by 6 rectangular plane surfaces is called a cuboid. So a cuboid has 6 rectangular faces and opposite faces are parallel and equal. ये सब आपने पढ़ा. ये क्यूबॉइड का एक फिगर है. इसमें अपोजिट जो फेसेस हैं वो पैरेलल एंड इक्वल होंगे. तो सपोज इसमें ए बी इज लेंथ, बी ई इज ब्रेथ एंड बी सी इज हाइट. हमारे पास यहाँ पर ये दिए हुए हैं. तो अपोजिट फेसेस जो होंगे वो पैरेलल और इक्वल होंगे तो इनका एरिया भी इक्वल होगा. तो सबसे पहले हम बेस और ऊपर टॉप की बात करें तो ये क्या हो जाएंगे, L इंटू बी. तो एक बेस है, एक टॉप है, तो 2 टाइम्स L इंटू बी ये हो जाएगा. साइड के दोनों फेसेस वो हमारे पास हो जाएंगे B इंटू एच. तो 2 हैं, 2 टाइम्स ऑफ B इंटू एच. एंड फ्रंट और बैक वाला सरफेस, जो फ्रंट है A B C D ये फेस और इसके बैक में जो फेस है ये हमारे पास हो जाएगा. इसका एरिया होगा L इंटू एच. तो 2 फेसेस हो गए, 2 सरफेस ऐसे हो गए, तो ट्वाइस L इंटू एच. सो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. तो सरफेस एरिया क्यूबॉइड का क्या होगा, इन सब का सम. हर एक फेस 2 हैं तो यहाँ पर सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल स्क्वायर यूनिट्स. ये हमारे पास क्यूबॉइड का सरफेस एरिया आ जाएगा. अब अगर हम ये बोलें कि एल बी एच तीनों ही इक्वल हैं तो उस केस में हमारे पास आ जाता है क्यूब. तो क्यूब क्या होता है, ऐसा क्यूबॉइड जिसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों ही इक्वल हैं. सो क्यूब, फॉर क्यूब, अ क्यूब इज अ सॉलिड बाउंडेड बाय 6 congruent faces. In other words, its length, breadth and height are equal. Suppose इसकी जो साइड है वो A है तो हाइट भी, लेंथ भी A होगी, ब्रेथ भी A होगी और हाइट भी A होगी. In this case, surface area of a cube equal to 6A square unit. तो यहाँ पे L की जगह भी A, B की जगह भी A, सब की जगह अगर हम ये लिख देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 6A स्क्वायर.
Example number first. A small greenhouse herbarium is made entirely of glass panels, including base, held together with tape. It is 30 centimeter long, 25 centimeter wide, and 25 centimeter height. What is the area of the glass? And second one, how much of a tape is needed for all the four edges? Here, length equal to 30 centimeter, width or breadth equal to 25 centimeter, and height equal to 25 centimeter. So for A, area of glass, equal to total surface area of the cuboid. ये cuboid बनेगा. So total surface area of the cuboid. Total surface area of the cuboid equal to 2 times L into B plus B into H plus H into L. So substitute all the values. We get 2 into 30 into 25 plus 25 into 25 plus 25 into 30 square centimeter. क्योंकि यूनिट हमें सेंटीमीटर में है दिया हुआ है, तो यूनिट्स स्क्वायर सेंटीमीटर. एरिया हमेशा हम स्क्वायर सेंटीमीटर में उसकी यूनिट होती है. सो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स 750 प्लस 625 प्लस 750 square centimeter, and this is equal to 4250 square centimeter. Now B, length of the tape needed, equal to length of all 12 edges. Length of all 12 edges. So this is equal to 4 times of L plus B plus H, and this is equal to 4 30 plus 25 plus 25 centimeter, and this is equal to 320 centimeter. Example number second. Parveen wanted to make a temporary shelter for her car by making a box-like structure with tarpaulin that covered all the four sides of and the top of the car, with the front face as a flip which can be rolled up. Assuming that the stitching margin are very small and therefore negligible, how much tarpaulin would be required to make the shelter of the height 2.5 meter with base dimension 4 meter into 3 meter. So here L equal to 4 meter, this is given, and base equal to 3 meter and height equal to 2.5 meter. Therefore tarpaulin क्या होता है? त्रिपाल. हिंदी में इसको त्रिपाल बोलते हैं. Tarpaulin required equal to area of top plus area of top, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू एरिया ऑफ टॉप प्लस 2 टाइम्स L प्लस B इंटू H. क्यों हमने ऐसा लिखा? क्योंकि हमें बेस पे tarpaulin नहीं लगाना है, तो बेस
हमारे को माइनस करना पड़ेगा, तो वो 2 टाइम्स से अलग हो जाएगा, तो एरिया ऑफ टॉप आ जाएगा, बाकी सारी साइड्स आएंगी, तो 2 टाइम्स L इंटू एच प्लस बी इंटू एच। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स L इंटू एच प्लस बी इंटू एच। L इंटू बी में से सिर्फ एक आएगा टॉप का, क्योंकि बेस का हमें एरिया नहीं चाहिए। सो दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 3 प्लस 2 टाइम्स 4 इंटू 2.5 प्लस 3 इंटू 2.5 square meter. So this is equal to 12 plus 35 square meter equal to 47 square meter. क्लियर? तो इस केस में हमारे पास एक सरफेस कम है, बेस वाला सरफेस हमारे पास नहीं आ रहा है। क्लियर? तो इसकी जगह हमने सिर्फ एरिया ऑफ द टॉप लिखा है। नाउ नेक्स्ट वन, Shanti sweet stall was placing an order for making cardboard boxes for packing their sweets. 2 sizes of box were required. The bigger of dimension 25 centimeter into 20 centimeter into 5 centimeter and the smaller dimensions 15 centimeter into 12 centimeter into 5 centimeter. For all of overlap, 5% of the total surface area is required extra. If the cost of the cardboard is rupees 4 by 1000 square centimeter, find the cost of cardboard required for supplying 25 boxes of each. So here, for the bigger boxes, we have L equal to 25 centimeter, B equal to 20 centimeter and H equal to 5 centimeter. Therefore, surface area of one box equal to कितना होगा 2 टाइम्स ऑफ L इंटू बी, बी इंटू एच इंटू एच इंटू एल. सो दिस इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ अ बॉक्स ऑफ वन बॉक्स लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 25 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 25 square centimeter, and this is equal to 2 times of 500 plus 100 plus 125 and this is equal to 1450 square centimeter. ठीक है, तो ये तो क्या आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ अ बॉक्स, वन बॉक्स. देन extra cardboard for overlapping equal to कितना रिक्वायर्ड है 5% एक्स्ट्रा. तो कितना, जितना उसका सरफेस एरिया आया, ये सरफेस एरिया आया ये वाला, इसका 5%, तो इसका 5% मीन्स 5/100 इंटू 1450 square centimeter. So this is equal to 72.50 square centimeter. So therefore total cardboard required for one bigger box equal to कितना आ जाएगा 1450 प्लस 72.50.
क्योंकि जो फोल्डिंग के लिए, ओवरलैपिंग के लिए जो एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड चाहिए वो हमने निकाल लिया, दोनों को हमने सम किया, तो टोटल हमें एक कार्डबोर्ड के, एक बॉक्स के लिए कितना चाहिए, 1522.50 स्क्वायर सेंटीमीटर। और हमें टोटल कार्डबोर्ड कितने चाहिए, 250। सो देयरफॉर कितने बॉक्सेस चाहिए, 250। देयरफॉर कार्डबोर्ड फॉर 250 बॉक्सेस इक्वल टू 250 इंटू 1 के लिए कितना, 152250 इतना स्क्वायर सेंटीमीटर। एंड ये कार्डबोर्ड हो गया। नाउ कॉस्ट ऑफ 250 बॉक्सेस इक्वल टू रुपीज़, कितना है, कॉस्ट कितनी दी हुई है हमें, 4/1000 स्क्वायर सेंटीमीटर, रुपीज़ 4/1000 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो कितना आ जाएगा, रुपीज़ 250 इंटू 1522.50 इंटू 4/1000। So this is equal to 1522.50 रुपीज़ इतना। तो ये हमारे पास 250 बड़े वाले कार्डबोर्ड्स का कॉस्ट आ गया। नाउ फॉर स्मॉलर, नेक्स्ट फॉर smaller size of boxes, L equal to 15 centimeter, B equal to 12 centimeter, ये सब गिवन है हमें, and H equal to 5 centimeter. Therefore surface area of a smaller box equal to 2 times of 15 into 12 plus 12 into 5 plus 5 into 15 square centimeter, and this is equal to 2 times of 180 plus 60 plus 75 square centimeter, and this is equal to 630 square centimeter. Then extra cardboard for overlapping इसके लिए कितना चाहिए था, 5% एक्स्ट्रा चाहिए, जितना सरफेस एरिया है तो 5/100 इंटू कितना है 630 इतना स्क्वायर सेंटीमीटर, एंड दिस इज इक्वल टू 31.50 स्क्वायर सेंटीमीटर। देयरफॉर टोटल cardboard required for one smaller box, this is equal to कितना, this plus this means 630 plus 31.50 square centimeter, and this is equal to 661.50 square centimeter. Therefore कार्डबोर्ड फॉर 250, हमें 250 चाहिए, कार्डबोर्ड फॉर 250 बॉक्सेस इक्वल टू 250 इंटू 661.50, सो टोटल इतना स्क्वायर सेंटीमीटर, टोटल इतना हमें कार्डबोर्ड चाहिए। नाउ कॉस्ट
Therefore, cost of 250 boxes कितनी कॉस्ट है पर स्क्वायर सेंटीमीटर के हिसाब से 4/1000 ये हमें गिवन है। तो कितना हो जाएगा रुपीज़ 4/1000 इंटू 250 इंटू 661.50 and this is equal to रुपीज़ 661.50। तो ये स्मॉलर की आ गई। देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ सप्लाई, दोनों की कॉस्ट को बिगर वाले की और स्मॉलर वाले दोनों की कॉस्ट को जोड़ देंगे। रुपीज़ कितना था बिगर वाले के लिए, हमने निकाला था ये दिस वन रुपीज़ 1522.50 एंड स्मॉलर के लिए दिस वन रुपीज़ 661.50 and this is equal to rupees 2184। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। सपोज एक सर्कुलर शीट पेपर है हमारे पास। ये अगर हम इस शीट पेपर को, इस सर्किल को एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते जाएं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कुछ इस तरह का। ये एक के ऊपर एक हम अगर रखते जाएंगे तो एक पाइल एक इस तरह का हमारे पास आ जाएगा। बिल्कुल एक के ऊपर एक रखते गए तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये क्या कहलाता है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। इस तरह की हमारे पास एक फिगर आ जाएगी। अगर हम इसको एक के ऊपर एक ना रखें और थोड़ा सा ये तिरछा हो जाए, टिल्ट हो जाए, मतलब कि इसको एक को ये रखा, फिर सेकंड वाला इसके थोड़ा ऐसा इस तरह से अगर हम रखें तो ये सिलेंडर थोड़ा सा तिरछा बनेगा, तो हम इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं बोलेंगे। तो हमारे पास अभी हम जो बात करेंगे वो हम करेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर की। तो हम इसको खाली सिलेंडर भी बोल देंगे। क्लियर? तो ये होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब सपोज अगर हमें इस सिलेंडर को कवर करना है तो कवर करने के लिए हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल पेपर लेंगे। ठीक है, इसको इस वाले सिलेंडर को कवर करने के लिए क्या करेंगे, हम एक रेक्टेंगुलर पेपर लेंगे। उस पेपर को अगर हम फोल्ड करेंगे ऐसे, इसके ऊपर कवर कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इस तरह से एक सिलेंडर बन जाएगा, है ना। इस तरह का एक सिलेंडर बन जाएगा। तो क्या होगा कि जो इसकी ये लेंथ और ये इसकी हाइट, ये पूरा इसको कवर कर लेगा। तो ये कहलाता है कर्व सरफेस एरिया। मतलब जो सिलेंडर से इसको हमने कवर किया वो क्या कहलाता है, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट। और इसका एरिया कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। किसी भी रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब जो ये लेंथ है वो लेंथ क्या हुई, वो पूरा इस सर्किल के शेप में आ गई, सर्किल के शेप में। तो सर्किल का जो लेंथ है वो क्या बन गया, उस सर्किल का पेरीमीटर। तो लेंथ की जगह हम लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इनटू
जो विड्थ थी वो हाइट के इक्वल हो जाएगी। पेरीमीटर कितना होता है किसी सर्कल का? 2πr इंटू एच। सो वी कैन से दैट curved surface area of a cylinder equal to 2 pi r h। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इक्वल टू 2 pi r h। ठीक है। नाउ now we take a cylinder. So this is a cylinder and cylinder has one top। ये इसके ऊपर एक टॉप होगा जो एक सर्किल होगा। इसी तरह से एक बेस होगा, वो भी एक सर्किल होगा। तो सर्किल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो एक सर्किल बेस है, एक सर्किल टॉप है। तो हमारे पास ये बेस और टॉप का एरिया हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आ सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई आर एच तो है ही, वो कर्व सरफेस एरिया है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर। बेस का और टॉप का एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। तो वो 2 बार है तो 2 पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 2 पाई आर प्लस एच। So this is the total surface area of the cylinder. Clear? तो इस तरह से हम किसी भी सिलेंडर का सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। कर्व सरफेस एरिया अलग है, टॉप और बॉटम का उसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। Now example number 4. This one is 4th. Example number 4th. A metal pipe is 77 centimeter long. The inner diameter of a cross section is 4 centimeter and outer diameter is being 4.4 centimeter. Find its inner curved surface area, outer curved surface area and total surface area. So we have metal pipe. Metal pipe इस तरह का कुछ ऐसा होगा और ये पाइप। तो पाइप हमारे पास कैसा होता है? सिलेंड्रिकल होता है। इसका इनर डायमीटर हमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। दिस वन इज डायमीटर 4 सेंटीमीटर एंड आउटर वन इज 4.4 सेंटीमीटर। क्लियर? तो क्या करेंगे? इनर रेडियस of the pipe इसको स्मॉल आर से डिनोट कर दें। दिस इज इक्वल टू 4/2 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड आउटर रेडियस ऑफ द पाइप कैपिटल आर इक्वल टू 4.4/2 सेंटीमीटर इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर एंड लेंथ इक्वल टू लेंथ और इसको लेंथ ऑफ द पाइप वो हाइट हो जाएगी। लेंथ ऑफ द पाइप वो क्या हो जाएगी? हाइट इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। दिस इज ऑल्सो गिवन 77 सेंटीमीटर। सो नाउ ए पार्ट ए inner curved surface area. Inner curved surface area equal to 2 pi r h. This is equal to 2 into 22/7 into 2 into 77.
तो दिस इज इक्वल टू 968 स्क्वायर सेंटीमीटर. Second one, outer curved surface area. This is equal to 2 pi capital R into H, equal to 2 into 22/7 into 2.2 हमने कैपिटल R निकाला था into 77 square centimeter, and this is equal to 1064.8 square centimeter. Now total surface area. Now third one is for total surface area, we also find area of the two circular rings at the ends of the pipe. Means ये पाइप है, तो जो ये रिंग बनी ऐसे दोनों एंड्स पे बनेगी, तो इस एंड का, इस रिंग का भी हमें सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा. ये 2 टाइम्स है, मतलब ऊपर और नीचे दोनों तरफ इस तरह की रिंग बनेगी. तो उसका जब हम एरिया निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ द 2 सर्कुलर रिंग्स इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सर्किल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर. तो दोनों, क्योंकि हमें सिर्फ रिंग का एरिया निकालना है, तो 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. मतलब बड़े वाले रेडियस में से छोटे वाले रेडियस को माइनस कर देंगे अगर उस एरिया को, तो हमारे पास फिर रिंग का एरिया आ जाएगा. क्या मतलब हुआ कि ऊपर जो हमारे पास ये ऊपर की तरफ जो बन रहा है, उसके बड़े सर्किल में से अगर हम छोटे सर्किल का एरिया माइनस कर दें तो सिर्फ हमारे पास रिंग जो बन रही है उसका एरिया आ जाएगा. तो हमने यही किया है. 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, मतलब बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दिया. 2 क्यों लगाया है? क्योंकि रिंग ऊपर और नीचे दोनों तरफ बन रही है, तो 2 लगा दिया. So this is equal to 2 into 22/7 and 2.2 whole square minus 2 whole square, 2 square. This is equal to 44/7 into 0.84 square centimeter. And this is equal to 5.28 square centimeter. Therefore, total surface area इक्वल टू, अब हम तीनों एरियाज़ को प्लस कर देंगे. 968 प्लस 1064.8 प्लस 5.28 स्क्वायर सेंटीमीटर, एंड दिस इज इक्वल टू 2038.08 square centimeter. This is our answer. ठीक है. Now next one, example number 5th. Find the curved surface area of a closed cylindrical petrol storage tank that is 4.2 meter in diameter and 4.5 meter height. Second one, how much steel is actually used for if 1/12 of the steel actually used was wasted in making the tank. Here R equal to 4.2/2 meter equal to
21/10 meter, and height equal to 4.5 meter equal to 9.2 meter. So for A, the curve surface area, कर्व सरफेस एरिया को लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं. द कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू 2 पाई आर एच. दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7, आर इक्वल टू 21/10 एंड एच इक्वल टू 9/2 स्क्वायर मीटर, and this is equal to 59.4 square meter. So this is our curved surface area. Now B. Total surface area of the closed tank. This is equal to 2 pi RH plus 2 pi R square, and this is equal to 2 pi R H plus R equal to 22 into 22/7 into 21/10 bracket 9/2 plus 21/10 square meter equal to 132/10 upon 10. 10 LCM आ जाएगा हमारे पास. 10 45 plus 21 square meter, and this is equal to 132/10 into 66/10 square meter equal to 87.12 square meter. So this is our total surface area of the tank. Okay, then let x square meter of steel be used for making the tank. As 1/12 of steel has been wasted. This is given. We have, ये हमें गिवन है कितना कि 1/12 शीट वेस्ट हो गई. देन वी हैव x minus x/12. 1/12 टोटल x थी, उसमें से 1/12 वेस्ट हो गई, एंड दिस इज इक्वल टू 87.12, और दिस इम्प्लाइज 11/12 x equal to 87.12, or this implies x equal to 87.12 into 12/11 square meter, or this implies x equal to 95.04 स्क्वायर मीटर. मीन्स इतनी शीट स्टील लगी, क्योंकि 1/12 वेस्ट हो गई, तो हमने उससे हमने टोटल जितनी एक्स चाहिए यूज़ हुई वो हमने निकाल ली. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन, एग्जाम्पल नंबर 6. In figure, we have a frame of a lamp shade. It is to be covered with a decorative cloth.
The frame has a base of diameter of 20 centimeter and height 30 centimeter. A margin of 2.5 centimeter is to be given for folding it over the top and bottom of the frame. Find how much cloth is required for covering the lampshade. सो फॉर दिस हमेशा एक तो ध्यान रखिएगा कि जब भी डायमीटर दिया हुआ है तो उसको हमें रेडियस में चेंज करना है, ये मिस्टेक नहीं करिएगा. सो द डेकोरेटिव क्लॉथ forms a cylinder of base diameter 20 centimeter. So diameter equal to 20 centimeter. This is 20 centimeter and height is 30. So this height is 30 centimeter. And height 30 दिए and margin of 2.5 centimeter. So height equal to actual height plus 2 margin, एक ऊपर और एक नीचे, 2 margin हो गए, 2 margins of 2.5 centimeter each. So therefore तो actual height कितनी हो जाएगी 30 plus 2 into 2.5 centimeter means 35 centimeter. So इसकी height कितना हो जाएगा 35 centimeter. Therefore radius r equal to 20 upon 2 centimeter equal to 10 centimeter and height equal to 35 centimeter. Therefore area of decorative cloth equal to 2 pi rh. कर्व सरफेस एरिया उतना ही हमें क्लोथ चाहिए रहेगा. This is equal to 2 into 22 upon 7 into 10 into 35 square centimeter, and this is equal to 2200 square 2200 square centimeter, and this is our answer. Hope you enjoyed today's lesson. If you have any problem or doubt related to this topic, please comment below. I will try to respond to each one of your questions. I will be uploading next part of this chapter soon. Once again, please like and subscribe my channel to not miss the upcoming videos. Thank you.